Sairam ma'am. Sairam ma'am. Yes, yes, yes. So थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा यहाँ पे शोरगुल ज्यादा हो रहा है. द लंच पीरियड हैज जस्ट एंडेड. थोड़ी देर में सब सेटल डाउन हो जाएगा, देन विल स्टार्ट अगेन. साईराम मैम. साईराम मैम. यस बेटा, साईं राम. आप सभी को साईं राम. Sairam ma'am. हम लोगों साईराम को मैम. आज क्वेश्चन आंसर करने थे, राइट? यस मैम. SPL question answers. चाहिए. मैं अपनी ई बुक खोल लेती हूँ आपके साथ, so that I will be able to understand what's going on as well. Just give me. Yes. There seems to be a lot of disturbance around because there is one offline class right here, but we'll try to avoid the disturbance as much as possible. तो चैप्टर कौन सा चल रहा है हमारा? चैप्टर 6 हिस्ट्री. ओके ओके ओके. Just give me one more second. मुझे लग रहा है ये लोग एक बार में
Yes. Okay, so let's start the work with fill in the blanks. Whoever wants to answer, either raise your hand or write A in the chat box. I'll give you a chance. Sarakshi, fill in the blanks. Answer बताइए. Okay, ma'am. A. The Rajarajeshwara temple was built in early 11th century. Ajmer is associated with the Sufi saint Khwaja Muinuddin Chishti. Hampi was the capital of the Dash Empire. Vijayanagar, the Dutch established a settlement at Dash in Andhra Pradesh, Masulipattnam. ठीक है. Ma'am, I have a doubt. Yes, पूछिए. Ma'am, the first question ये था कि the Rajarajeshwara temple was built in. तो मैम इसमें थांजावर नहीं होगा? नहीं, उसमें टाइम लिखना है. एट में होती है जगह, इन में होता है टाइम. ट्रू और फॉल्स? मैम योगिता बताइए. मैम 1 मिनट रुक जा नितेश, पहले ट्रू और फॉल्स हो जाए फिर मैं तुम्हारी बात पूछूंगी. यस योगिता बताओ. योगिता किसका नाम है? यस योगिता आंसर बताइए. We know the name of the architect of the Rajeshwara temple from an inscription. True. B. Merchants preferred to travel individually rather than in caravan. False. Kabul was a major center for trade in elephants. False. Surat was an important trading port on the Bay of Bengal. False. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. मैम कैन आई? 1 मिनट. अनुमेगा बताइए. How was water supplied to the city of Thanjavur? It is in page number 76 and the answer is wells and tanks were used to supply water to the city of Thanjavur. ओके नेक्स्ट शशांक बताओ. मैम मेरे पास 5th का है. क्यों बाकी के आंसर तुम्हें करना नहीं है क्या? मैम 3rd और 4th का है मेरे पास और 7th का है. आधा होमवर्क करके क्यों लाते हो? अयान बताइए. यस मैम. पेज नंबर 87, second paragraph, 5th line. The Black Town established by the European campaigns within these new cities. The blacks or negative traders and craftspersons were confined here, while the white rulers. नेक्स्ट आदित्य. मैम मेरे पास एक और आंसर है. किस चीज का? ब्लैक टाउन्स वाले का? बेटा जो उसने बताया वो सबसे इजी आंसर है. यस मैम. मैम मेरे पास आंसर उसका एक और. Yes, Aditya. Question number 5. Why do you think the towns grew around temples? आदित्य बेटा बुलाती हूँ तो कहाँ रह जाते हो तुम हमेशा? यस कैथरीन, चलो तुम बताओ. Why do we think towns grew around temples? Answer: towns grew around temples because of the following reasons. Priests, workers, artisans, craftspersons settled around temples. And second reason is several shops came up around temple to cater to the needs of pilgrims
and the priests, etc. ठीक है, मैं नेक्स्ट आपको चेक करा सकती हूँ क्या मेरा आंसर जो मैंने ढूंढा है। बताओ? Temples towns represent a very important pattern of urbanization. The prosperous cities developed. Temples were often central to the economy and society. Temple authorities uses their wealth to finance trade and banking. Gradually, a large number of parties, workers, artisans, traders, etc., settle near the temple to cater into to its near and those of the piglins, thus grew temple towns. बेटा आंसर गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तुम्हें लिखना है लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरुष, यस नेक्स्ट। Yes, ma'am. How important were craft persons for the building and maintenance of temples? Answer. 1 minute. Craft persons were very important because of the following reasons. They carried out inlay work in copper and silver. Craft persons from Bidar were well known for Bidri work. Goldsmith, second point, goldsmith, bronzesmith, blacksmith, mason, carpenters built temples. Third, they also maintained them. Fourth, weavers also played an important role in cotton textiles. Ma'am, ओके नेक्स्ट, व्योम बताओ। Why did people from distant lands visit Surat? Answer: Surat of point one. Surat was the most important medieval port on the west coast of Indian subcontinent. Point two. It was the emporium of Western trade during the Mughal period. Point three. Surat was gateway trade with West Asia via the Gulf of Hormuz. Point four. Surat has also been called the gate of Mecca because many pilgrim ships get sailed from here. Point five. There were also several retail and wholesale shops selling cotton textile. Of point six. Surat was famous for the textiles which gold lace borders Surat. Due to all such regions, many people from distant land visited Surat. Ma'am, I have an extra point that we can add to this answer. एक सेकंड, होल्ड योर हॉर्सेस, एक साथ सब लोग नहीं बोल सकते, किसी की समझ में नहीं आती। यस अनुमेघा, ऐड योर पॉइंट। Yes, ma'am. Surat, yes, ma'am. Their magnificent buildings and innumerable pleasure parks which attracted people. ठीक है मैम मेरे पास ना एक और आंसर है 7th का। बेटा, मेरे ख्याल से इतने सारे पॉइंट्स बहुत हो गए, इसमें से जो अच्छे से याद हो जाए उतने काफी हैं। एंड नेक्स्ट संदेश बताओ। Yes, ma'am. Ma'am, 8th one. In what ways was craft production in the cities like Kolkata different from that in cities like in Tanjavara? Ma'am, just a second. Begin to work on a system of advance, which meant that they had to waive cloth which was already promised to European agent. Weavers no longer had a liberty of selling their own clothes or weaving their own pattern. They had a reproduce the designing supplied to them by the company against. मैम उसने थंजावर का तो बोला ही नहीं। मैं बोलूं? मैं बोलूं? व्योम, ये आंसर कंप्लीट करो। Yes, ma'am. In Thanjavur, crafts were developed on interest and they were creative and spectacular. In Calcutta, craftspersons began to work on a system of advances. They were having liberty to sell their own made crafts and textile, while here they no longer had the liberty of selling their own crafts. In Calcutta, they had to reproduce the design supplied to them by the company agents.
And they now had to move into the black towns established by the European companies within these new cities. मैम मेरे पास ये 3 पॉइंट्स के अलावा एक और है. Go ahead, बताओ. Calcutta. Craftspersons work on a system of tharvanesis, which meant that they had to weave cloth which was already promised to European agents. Weavers no longer had the liberty of selling their own clothes as weaving their own patterns. They had to reproduce the designs supplied to them by company agents. Thanjavur and the nearly towns of Eurasia are busy producing cloth for flags to be used in the temple festival. Okay. ठीक है, हम लोगों के SPL का जो चैप्टर 5 है विमेन चेंज द वर्ल्ड, उसके क्वेश्चन आंसर हो गए थे, राइट? यस मैम. ओके, तो हम लोग ना विल ट्राई टू अंडरस्टैंड मार्केट टुडे, सॉरी मीडिया. सी मीडिया ऐसा है कि मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है. मीडिया मेनली दो तरीके का होता है. एक होता है डिजिटल मीडिया जो कि टीवी, इंटरनेट, किसी भी तरीके के डिजिटल फॉर्मेट में होता है. एक होता है प्रिंट मीडिया. प्रिंट मीडिया कैसा होता है? जो कि प्रिंटेड फॉर्मेट में, जो कि न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, पैम्फलेट्स, इनके फॉर्म में होता है. तो इनकी वजह से बहुत सारे हमारी सोसाइटी में चेंजेस आते हैं. तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट मीडिया इज. थोड़ा सा अपना भी तुम लोग दिमाग लगाओ, थोड़ा सा हम इसमें भी देखेंगे. और बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप सब लोग अपने अपनी तरफ से एक मीडिया रिलेटेड या कोई सा भी एक एडवर्टाइजमेंट आप लोग अपनी तरफ से लेकर आए, तो हम लोग उसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. मैम बोलो. मैम जो हमने अभी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए थे, उसमें 5th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन, इनके मेरे पास थोड़े अलग आंसर है. तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर वो सही होंगे तो मैं उन्हें कॉपी में लिख लूंगी. तुमने कहाँ से ढूंढे? तुम मुझे सोर्स बता दो तो मैं बता दूंगी वो सही है या नहीं है. देखो, आंसर सही गलत की बात नहीं है, आंसर सिंपल भी होना चाहिए. इंटरनेट से ढूंढ रहे हो, आंसर कॉम्प्लिकेटेड मिलते हैं. मैं बार बार बताती हूँ, गाइड से ढूंढते हो आंसर कॉम्प्लिकेटेड मिलते हैं. आंसर बुक में से ढूंढना चाहिए. और बुक की जो लैंग्वेज है वो सबके पास सेम ही होती है, इसलिए मैं तुम लोगों से बार बार कहती हूँ. और अगर उसमें भी तुम्हें डाउट आ रहा है तो दीक्षा की ऐप पे खोल के देख लो, उसके अंदर बुक में से आंसर है, वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में है. अब हर कोई अलग अलग आंसर लिखेगा तो मैं हर किसी का आंसर बैठ के रिव्यू नहीं कर सकती. कम्युनिकेशन इज अ वे टू स्प्रेड मीडिया. यस, ऑब्वियसली. नहीं तो अब मीडिया जो है वो कम्युनिकेट किए बिना एक दूसरे तक कैसे पहुंचेगा? It is one of the ways means of communications can be used. सब लोग एक एडवर्टाइजमेंट लेकर आएंगे प्रिंट मीडिया में या डिजिटल मीडिया में, हम लोग उसको रिव्यू करेंगे. So let's see what Tata Classes has to say about media, technology and money. This does not seem to be working today.
Need a few more minutes to take care of this. अच्छा, चलो जब तक ये नहीं चल रहा है हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, वैसे भी ज्यादा टाइम हमारे पास बचा नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ, कोई सा भी ऐसा तुमने ऐड देखा हो अभी रिसेंट के टाइम पे, तो उसकी कोई टैग लाइन हो, तो मुझे कोई सुना सकता है तो सुना। कोई से भी ऐड की जो टैग लाइन होती है, जो तुम्हें बहुत अच्छी लगती हो, वो मुझे कोई बताना चाहता है तो बताओ। यू कैन रेज योर हैंड और राइट ए इन द चैट बॉक्स एंड आई विल गिव यू द चांस। किसी को नहीं पता? कोई ऐड नहीं देखा तुमने टीवी में किसी भी चीज का? बहुत देखा है हमने। तो बताओ ना, जो बहुत देख रखे हैं, कोई एक तो बताओ हमें। यस सौम्या बताओ। यस मैम। मैम वो च्यवनप्राश का ऐड था। अच्छा, क्या था उसमें? मैम उसमें बहुत अच्छा सा गाना बजा था। क्या गाना था बता सकती हो? मैम गाना अच्छे से याद नहीं है, पर उसकी जो ट्यून थी वो अलग ही थी, पर इसलिए मुझे वो अच्छा लगा था। अच्छा, जरा एक बार फिर से देख कर आना और अगली बार मुझे उसकी ट्यून और गाना बताना, जो जितना भी बता सको। यस भी हूँ मैम मैंने व्हाइट हेड जूनियर का मैम जो उसकी टैगलाइन है, कोडिंग सीखो दुनिया बदलो, मैं वो अभी तक याद है। ओके, दैट्स वेरी रीसेंट। और और मैम एक व्हाइट हेड जूनियर वाला एक ऐड था जिसमें मैम दुनिया भर के बेसिस में एक दूसरे को पीट रहे होते हैं चिंटू के घर के सामने। फिर एक वो उसका जो नेबर है वो उससे पूछता है, वो उनके मम्मी पापा से पूछता है कि ये दुनिया ये क्यों क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो फिर वो चिंटू के मम्मी पापा बोलते हैं कि ये दुनिया भर के बिजनेसमैन है, क्योंकि चिंटू ने कोडिंग सीखा था, एक ऐप बनाया था, उसके ऐप में इन्वेस्ट करने के लिए आए थे वो सब। फिर वो चिंटू आ जाता है, फिर वो एक्चुअली उसका नेबर बोलता है, इसने इसने ये ऐप बनाया इस उम्र में, ऐसा करके कुछ था। दैट्स नाइस। एनीबॉडी एल्स? यस अनुमेगा बताओ बताओ। Utterly, butterly, delicious Amul. यस दैट्स वेरी नाइस। और कोई? मैम मुझे एक और याद है। बताओ बताओ, तुम बताओ। मैम बलिनो का लेट्स डू समथिंग बोल्ड टुनाइट। किसका है ये? बलेनो का? बलिनो। अच्छा हाँ हाँ हाँ। और कोई? सबसे पॉपुलर अभी जो मुझे याद है, जब मैं थोड़ा बहुत टीवी देखती थी, वो तुम्हें भी याद होगा, जो बताऊँ। चाय के लिए जैसे दोस्त होता है, वैसे हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। किसका ऐड है, किसी को याद है? ये एयरटेल का ऐड है। और कोई ऐड किसी को याद आ रहा है? एक फ्लिपकार्ट के ऐड आते थे, उसमें जो छोटे छोटे बच्चे दाढ़ी मूछ लगा के बातचीत करते थे। बच्चे टॉप वो करते थे। हाँ, एक्टिंग करते थे बड़ों के तरह। एक एक्टिंग ऐड करते थे याद था बड़े कि लोग। इसमें एक छोटा सा कारपेंटर था, वो बोर्ड को ऐसे वो ऐसे करता है, मतलब यस योगिता बताओ। मैम बेटा एक साथ माइक ऑन मत करो, जस्ट रेज योर हैंड, आई विल गिव यू अ चांस। यस योगिता बताओ। मैम को एक बिंगो चिप्स का एक ऐड आता था, जिसमें रणवीर सिंह ना अपने वो पता नहीं एक बैग में पैसे लेके जा रहा होता है, और वो गंदे आलू उससे छीन रहे होते हैं, और फिर वो अच्छा वाला आलू आता है उन सबको भगा देता है। वो बड़ा ही प्यारा लगता है मुझे, इसलिए अच्छा मुझे। अग्रिमा बताओ। मैम एक पर्स का ऐड आता है, जो वो कार्टून रहता है, उसमें वो पत्नी रहती है, तो हमें पता है मेरी पर्स का पति कहते नहीं पता, वो कहते तुम भूले कि हम कार्टून है, वो अपने पीछे पर्स छिपा रहते हैं, जब वो उसे मारने भागते हैं वो भी भागता है, उसमें बड़ा मजा आता है। संदेश बताओ। मैम मैम एक बिंगो टेढ़े मेढ़े का ऐड आता है मैम, जिसमें है ना मैम एक डॉक्टर है ना, एक बूढ़े अंकल को है ना मैम वो दवाई मवाई लगाने आता है मैम। इसके बाद है ना वो क्या करते हैं, वो बोलता है शाम को आ जाना आप ठीक हो जाओगे। सारे लोग बोलते हैं चलो, हमारा शाम को तो हमारे साथ हमारे बिंगो टेढ़े मेढ़े के साथ वो है खाना है, हमारे पास बिंगो टेढ़े मेढ़े पल्स मिक्स है, ये सब ऐड दिखाते हैं। अच्छा यस सौम्या। यस मैम एक वो आता था, हाँ वो बच्चों का शॉप वाला,
तो उसमें छोटे छोटे बच्चे से वो अमिताभ बच्चन जी पूछते हैं कि आज क्या न्यू है, तो फिर वो बोलते हैं आज ये न्यू है वो न्यू है। एक बच्चे ने बोला कि आज मेरे शूज न्यू है, तो अमिताभ बच्चन ने छोटे छोटे 2 जूते पहन लिए थे। वो अच्छा, वाला भी बहुत अच्छा लगता है। ओके। कैथरीन। Ma'am, I like the ad of this mule in which they sing a song like India Jam Karega, that type. अच्छा, यस अनुमेघा। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। घड़ी घड़ी का डिटर्जेंट। है। घड़ी डिटर्जेंट। मैं वो एक पल्स वाला भी ऐड आता है ना, जान जाए पर पल्स ना जाए। प्राण जाए पर पल्स ना जाए, योगिता ने बताया। यस व्योम। मैम एक मेलोडी A का भी gift for आता है मैम। someone whom मैम you like. अच्छा, और कोई सा? मैम मेलोडी का, मैम मेलोडी खुद जान जाए। मेलोडी मैम का मैम और उसमें कोई क्या सा होता है मैम, मैम एक आदमी है ना स्पेस में जाके, मैम एक वो हाथ में से कुछ निकालता है और उसमें पूछते हैं कि पल्स इतनी क्यों टेस्टी है, फिर बोलता है पल्स खाओ और खुद जान जाओ। यस सौम्या बताओ। तो पल्स इतनी और चॉकलेटी क्यों है? अच्छा अच्छा अच्छा। यस हाँ। मैम। मैम वो था कि एक ने वो पहाड़ी पे चढ़ के फिर इधर जंप लगाई उधर जंप लगाई, फिर बाद में पहले तो लग रहा था कि पता नहीं उसका कुछ छूट गया होगा, पर बाद में जाके पता चला वो तो लिम्का के लिए ये सब कर रहा था। यस अनुमेघा। यस अनुमेघा। तो मैंने हैंड रेस नहीं किया तो वो तो करती सब। अच्छा, वो हैंड रेस्ड मैम ऑलरेडी है मैम मुझे एक बढ़िया पता है। मैम वो आपको भी शायद से हंसी आएगी। मैम बताओ। एक्चुअली ये एलपी लीबल टॉपिक का था कि इसमें एक एक सब्जी वाला होता है जो उसका वो सपना था कि वो जज बने, तो फिर वो ऐसे सब्जी बेचता था, आलू ले लो मूली ले लो मटर ले लो, ऐसे ऐसे करता था। और वो लेकिन वो रात के टाइम वो पढ़ाई करता था और फाइनली वो जज बन गया। तो फिर उसने एक ऐसी आवाज निकाली थी, मेरे पास सारे सबूत है कि ये मर्डर है। सबके सब लोग हंसने लगते हैं फिर। मैम 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 मैं बताओ वो शशांक, बताओ शशांक बताओ। मैं वो एक कॉपी को भी का भी तो था। मैं उसके मतलब जब पॉकेट में कॉफी डालता था और वो कॉपी को निकलती थी। यस व्योम बताओ। Thumbs up, face the thunder. फेस द थंडर। यस संदेश बताओ। मैम मेरे पास तो 2-3 है मैम। मैम एक वो मैम स्प्राइट के लिए एक ऐड आता है मैम, जिसमें है ना एक गाड़ी वाला लड़का एकदम स्प्राइट पी के इतनी जोर से गाड़ी भगाता है और मैम इतनी लॉन्ग जंप गाड़ी को देता है कि इतनी दूर तक जान के गिरती है। और मैम एक और है मैम, मैम एक डिटर्जेंट का है मैम, वो बोलती है कि आज तो चिंटू चिंटू मेरा पानी खत्म हो गया। फिर वो सामने वाले घर को देखती है और वो लड़की क्या करती है, बोलती है, फिर वो 2 बकेट लेके उसके घर पे पानी ले जाती है और फिर बोलती है ये वाला डिटर्जेंट यूज करो, इसमें कम भी पानी लगता है और आधे में ही सारा काम हो जाता है। अच्छा, एक एक मैं और बताती हूँ बस लास्ट, उस हम करेंगे इसे और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप प्रिंटेड मीडिया, 1 मिनट शशांक पहले सुन जाओ। प्रिंटेड वाला जो मीडिया है, एक ना प्रिंट मीडिया का कोई सा भी अखबार में से या मैगजीन में से कोई सा ऐड लेके आना, अपना कैमरा ऑन करके हमें भी ऐड दिखाना, हम उसका थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे और तुम्हें जितने भी ऐड याद आ रहे हैं अपन लोग सबके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल करेंगे, तुम्हारी पूरी इच्छा रखी जाएगी, जितने तुम्हें ऐड याद आ रहे हैं सब सुने जाएंगे। मैं एक ऐड की टैगलाइन सुनाती हूँ जो कि सबको याद होती है। हिमा, रेखा, जया और सुषमा, सबकी पसंद निरमा। ये बहुत पॉपुलर ऐड था, सबसे ज्यादा टीवी पर यही ऐड आता था। एक टाइड सफेदी की झनकार, जिसमें वो बिल्कुल ऐसे अलग अलग शेड दिखाता है। ये सब क्या है, ये एडवर्टाइजिंग है। ये एडवर्टाइजिंग अभी भी हमारे दिमाग में, इट मींस इट वाज इम्पैक्टफुल। ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट है, थोड़ा सा सोचोगे ना तुम्हें बिल्कुल याद आएंगे कि तुमने बहुत पहले देखे थे, लेकिन फिर भी तुम्हें याद रह गए, वो प्रोडक्ट्स याद रह गए। यही मीडिया है, यही एडवर्टाइजिंग है। ये आगे के दोनों चैप्टर्स को कवर कर लेगी। अभी रुक जाओ, तुम लोगों के मन में जो भी चीजें आ रही है वो हम ना नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, और कोई सवाल है? नो मैम। मैम एक लास्ट एडवर्टाइजमेंट बताऊं?
नहीं, आखिरी मैंने बोल दिया, मैं ही खत्म करूंगी, मैं टीचर हूँ। हम लोग अगली क्लास में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। अगर तुम्हें याद आ रहा है कहीं लिख के रख लो, ठीक है? जब तक तुम्हारे ऐड खत्म नहीं होंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। ऑलराइट, सो दैट विल बी टीवी में से देख लेंगे ना। क्या? हाँ बिल्कुल, लिख लो, टीवी में से लिख लो, जो याद रहता है वो लिख लो। मतलब ऐसे कि तुम्हें याद होना चाहिए हर ऐड में, जो ऐड तुम्हें याद है केवल वही एप्लीकेबल होगा इसमें, जो तुम्हारे मन में आ गया, जो तुम्हारे मन में बैठ गया। So that will be all for today. Thank you and Sairam. Sairam ma'am, thank you ma'am. Thank you, ma'am. Sairam ma'am. Sairam, thank you. Sairam, thank you. Sairam ma'am, thank you ma'am. Sairam, thank you. Sairam ma'am. Sairam, thank you. Sairam, ma'am. Sairam, beta, thank you. Thank you, ma'am. Thank you, beta.